एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सारे लेजर्स होते हैं. फिर मोटर वैन, देन फर्नीचर असेट्स, देन गुडविल एंड bad debts, debtors, creditors, bills receivable, bills payable. So those all are the topics of the ledgers. So ledger में जो भी आपके बैलेंस होते हैं लास्ट में, वो आपके ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है. Be very clear with this, okay? So moving ahead with the illustration 13, today we will going to start a very short and simple and sweet sum. So please keep in mind, journalize the following transactions in the books of Virat Traders, open necessary ledger accounts, balance and to the accounts and prepare a trial balance as on 31st of March 2019. So 2019 March 1st, Virat started a business with a cash of 50,000. Cash at Bank of India is 7,000 and furniture at 10,000. मतलब ये जो विराट है वो फर्स्ट मार्च में इन्होंने क्या किया था, बिजनेस चालू किया था. कैश 50,000 का था उसके पास. देन बैंक ऑफ इंडिया में उनका बैलेंस 7,000 का था, ठीक है, फर्म के नाम से. एंड उसके बाद फर्नीचर है 10,000 का. सो ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन है. एंड ऑन द अदर हैंड 3rd मार्च में उन्होंने परचेस किया रोहित से वर्थ ₹10,000 लेस 10% TD, that is trade discount. We have gone through with this trade discount, cash discount in the earlier chapters. So on 7th of March he also sold, यानी कि सेल आउट किया है. सुनील को सेल आउट किया था कितना, 5,000 लेस 5% TD, that is trade discount. Deposited cash with the Bank of India, that is 5,000. उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया है 5,000 का. Purchase furniture from Verma on credit worth ₹20,000 and paid to Verma by net banking 15th मार्च में 8,000 का किया है. 17 मार्च में paid printing expenses ₹200 and 20th मार्च में received commission 200. And later on 25th of March में withdrew cash from the bank of ₹1,000 by ATM and 28th March paid Verma 11,500 in full settlement to his account and 30th March paid advertisement bill of ₹500. So these all are the things which those are the transactions, okay? So now we will go ahead with the journal entries. So in the books of Virat Trader, March 1 में कैश 50,000 का था, 7,000 बैंक ऑफ इंडिया में है एंड फर्नीचर 10,000 का था. So altogether you will get 67,000 which is of Virat's capital account because he is the owner of the business. We have gone through with many of the journal entries, so don't get confused on it. On the other hand he has purchased also 9,000 का, कहाँ से, रोहित से, तो इसीलिए purchase account debit to Rohit's account. Being purchased goods from Rohit less 10% TDS. Okay, next one is Sunil's account debit to sales account, that is being goods sold to Sunil less 5% TD, that is 5,000 के ऊपर आपको क्या हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, that is 5%. So 0,0,0,0 cancel, you will get 250. So 250 जो है वो आपका TD है, ओके. एंड 5,000 में से आपको क्या करना है, 250 अगर आप माइनस करते हैं यू विल गेट 4,750. सो यू विल गोइंग टू गेट द डाउट कि मैम परचेस में तो आपने नहीं किया, आपने सुनील का सेल्स में क्यों किया. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू नो अबाउट इट. जब भी आप सेल कर रहे हो कोई भी चीज़ आउटसाइडर को या कस्टमर को, सो उसमें अगर आपने कुछ डिस्काउंट दिया तो ये आपका लॉस है. अगर 5,000 का गुड्स है उसमें आपने 5% का TD दे दिया, यानी कि -250 आपको कम मिल रहा है, दैट इज़ 4,750 आपको मिल रहा है, राइट. लेकिन आप अगर कहीं से भी परचेस करते हैं और उसमें आपको ऑलरेडी बोला है कि 9,000 मतलब लेस 10% TD, यानी कि हम लोग उसका सामने वाले का लॉस हो रहा है ना, मेरा थोड़ी लॉस हो रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन ओवर 9,000
and here it is written instead of 5,000 4,750. Move on to the next journal entries, that is 10th March, Bank of India account debit to cash account, being cash deposited with the bank 5,000. Furniture account debit, that is 12th March, furniture account debit to Verma's account, that is being furniture from purchase from Verma, that is 20,000. 15th March, Verma's account debit to Bank of India's account, that is 8,000, being purchase furniture by net banking. 17th March, printing expenses account debit to कैश अकाउंट, दैट इज़ पेड. आप जब भी पेड करो तो कैश जाएगा, टाटा बाय बाय करके क्रेडिट साइड में लिखना होता है. सो हियर यू नीड टू बी वेरी क्लियर. जब भी आप कैश देते हो वो क्रेडिट होता है, जब भी आपको कैश मिलता है, रिसीव्ड होता है, तो वो डेबिट होता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेड हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैश लिखा है, एंड कैश यहाँ पे आपका रिसीव्ड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडियाज़ अकाउंट 25 ऑफ मार्च में, क्योंकि उसने विदड्रॉ किया है 1,000. एंड लेटर ऑन 28 मार्च में वर्मास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, दैट इज़ 12,000. उसका डिस्काउंट 12,000 का जो भी डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिसीव किया 500 उसको मिला के. एंड द लास्ट वन इज़ एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड एडवर्टीजमेंट बिल 500. So this was all about the journal entries. So now we will move on to the ledger account, that is Virat's capital account debit and credit. So यहाँ पे आपके जहाँ पे भी विराट लिखा हुआ है, ये पूरे एंट्रीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे विराट लिखा है, यानी कि ये जितनी भी डेबिट हो रहे हैं वो आपकी विराट के कॉलम में, लेजर कॉलम में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, ये ध्यान रखिए. यहाँ पे कहीं पे भी विराट का नाम नहीं है, तो हम लोग ये सारी एंट्रीज नहीं देखेंगे फ़िलहाल, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं विराट का कहाँ पे नाम है. विराट का यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. सो 25 तक नहीं है. उसके बाद यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है. सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये 3 एंट्रीज़ हम लोग क्रेडिट साइड में देंगे. ओके, टोटल बैलेंस करेंगे और यही बैलेंस आपका कैरेट डाउन होने वाला है यहाँ पे. इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, एंड नेक्स्ट मंथ में वो क्या हो जाएगा, बॉट डाउन हो जाएगा. सो आई गेस विराट्स कैपिटल अकाउंट इज़ डन फ्रॉम माई एंड एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस. अभी यहाँ पे आ जाते हैं कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट, जहाँ जहाँ आपको जर्नल एंट्रीज में कैश अकाउंट दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे क्रिएट करना है. कैसे आप करेंगे, नॉर्मली पहले ऊपर से जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कैश अकाउंट. अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे कैश अकाउंट सिर्फ 50,000 का है, तो 50,000 का ही यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, तो कैश के खाते के क्रेडिट साइड में विराट का नाम आएगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 लेके, ठीक है. सो वो आप देखिए कहाँ पे किस तरह से लिखना है, ये देखिए वहाँ पे डेबिट हुआ था ना, एंड यहाँ पे कैश के खाते में डेबिट टू विराट्स अकाउंट, दैट इज़ 50,000. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे भी नहीं, ये एंट्री भी नहीं. अभी कैश जहाँ पे हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे. येस, वी गॉट अ कैश ओवर हियर, देन हियर, ओके, देन हियर, एंड फिलहाल ये 3 यानी कि 5,000, 200 एंड 1,000. बट वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे कि यहाँ पे 2 कैश है, यहाँ पे भी 2 कैश है. इसका मतलब ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है कैश, तो कैश के कॉलम के क्रेडिट साइड में ही आपको क्या लिखना है, ये सब का नाम लिखना है. बैंक ऑफ इंडिया 5,000, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 200, और यहाँ पे जहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है वहाँ पे कैश के लेजर में आपको 2 बैंक्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ 1,000 लिखना है. आपको देखना है, देख लीजिए कैश के खाते में, ये देखिए 200 एंड देखिए 5,200 आपने लिखा है. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. कैश और कहाँ है देखते हैं हम लोग. यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है. सो बच्चों, हम लोग को अभी क्या करना है,
यहाँ पे ये देखना है कि कैश अकाउंट 1000 है, यानी कि डेबिट साइड में है, तो आपको कैश के लेजर के डेबिट साइड में लिखना है बैंक ऑफ इंडिया 1000, जैसे कि मैंने दिखाया अभी जस्ट। एंड नेक्स्ट 28 मार्च में आपको यहाँ पे 2 कैश बता रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड में। सो हियर यू नीड टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय वर्माज अकाउंट, दैट इज़ 11,500, एंड एडवर्टीज़मेंट अकाउंट भी बाय एडवर्टीज़मेंट अकाउंट 500। ओके, आपको बताना है। देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हुआ एंड ये हुआ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। सो यहाँ का टोटल एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि बड़ा है टोटल 51,200 का, जबकि यहाँ पे कम है। ओके, यहाँ पे कितना है, 5,000 plus 200 gives you 5,200, and 5,200 plus 12,000 you will get 17,200, correct। so 51,200 को, यानी कि ये वाला नंबर we will going to minus it with 17,200, so you will get 0 0 0 then 4 and 3, that is 34,000 as a balancing figure हो गया, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया। सो ये नेक्स्ट मंथ में आपको यहाँ पे लिखना है। सो ये इसका बैलेंस है। तो बच्चों, वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया का भी अकाउंट वैसा ही रहेगा, जैसे कि मैंने बताया। फर्नीचर भी अकाउंट वैसे रहेगा, परचेस अकाउंट भी रहेगा। ओके, देन रोहित का अकाउंट, सुनील का अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वर्मास अकाउंट, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये सब का अकाउंट ऐसे ही बनाना है। ओके, बनाने के बाद अभी आपको क्या करना है, आप प्लीज़ अभी ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे 500 है, ये बैलेंसिंग हो रहा है। यहाँ पे जैसे बैलेंस 500 है, ठीक है। ये आपको किस तरह से लिखना है और कहाँ लिखना है, मैं आपको जस्ट अभी बता रही हूँ। ये है आपका ट्रायल बैलेंस। ओके, और ट्रायल बैलेंस यहाँ पे 500 आपने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे कैरेट डाउन हो रहा है, क्रेडिट साइड में। तो आपका ये एडवर्टीजमेंट कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में, ऑपोजिट, जस्ट टू द ऑपोजिट। जहाँ पे कैरेट डाउन हो रहा है वही आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे कैरेट डाउन कहाँ पे हो रहा है, डेबिट साइड में। क्या हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट का 500 दिखा रहा है, मतलब ऑपोजिट में जाएगा। अगर क्रेडिट साइड में अगर आपका अमाउंट दिखा, हाँ, अगर आपको क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरेट डाउन दिखा तो आपको क्या पे लिखना है, डेबिट साइड में। अगर आपको इफ़ इन केस जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड में कैरेट डाउन दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा होगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। सो ऑपोजिट एंट्री। सो इसी तरह से सारे लेजर का आप जब भी बनाते हो, दैट इज कॉल्ड योर ट्रायल बैलेंस। ओके, सो आई होप सो यू गॉट इट द थिंग्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियरली। सो प्लीज़ डू दिस एट योर होम एंड इन योर नोटबुक। आई वॉन्ट, बिकॉज आप PDF फॉर्म करके ये सैटरडे आप मुझे गूगल क्लासरूम में भेजने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं। So without fail, I want this sums to be done. So thank you so much for watching my lecture. Thanks a lot. Keep your mask on your nose, on your mouth. Okay, wear your mask properly and keep distance with your friends, with your relatives, with your family, and take care of yourself. Bye bye. Take care. Have a nice day.